Good morning everyone and welcome to the class. As we have completed our syllabus of social science, all the sub-subjects of social science like history, civics and geography, all the chapters in all these three sub-subjects have been completed, and now we will revise the chapters. Okay, so I'm going to start with start our revision with civics. Okay, and in civics our first chapter is understanding diversity. In this chapter we have discussed about diversity. What do we mean by diversity? What is the importance of diversity? Then diverse conditions which are prevailing in different parts of the country. We have discussed all these things, and the most important thing is that our country, though our country is diverse, but still we find unity. That is called unity in diversity. So first of all, we will try to understand diversity. Like when you all are given a task to draw anything, a human figure, then in that situation what happens, that you all will draw a human figure, but that human figure will be different of each one of you. Each one of you, the way you draw the different features of that human figure will be different, and there is very less possibility that any two drawings can be similar. कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, some points, some features may be similar, but it can't happen कि the whole drawing of two students will be similar. So this is diversity. Diversity is natural. हम सब अलग हैं एक दूसरे से, and this diversity is natural. अगर diversity नहीं है तो वो that is unnatural. मतलब उसको डाइवर्सिटी जो होती है वो नेचुरली होती है. लाइक फ्लावर्स को ही हम अगर देखें जो कि नेचर में होते हैं, अगर सारे फ्लावर्स रेड होते तो क्या होता? तो फिर दैट इज लैक ऑफ डाइवर्सिटी, और उससे क्या होता? मोनोटोनी आती. एक तरह का एवरीथिंग इज लुकिंग सिमिलर, हर फ्लावर रेड है, तो फिर वो चार्म नहीं रह जाता. बट व्हाट वी फाइंड कि देयर इज so different types of diversity exist in flower. So this diversity is natural. Likewise जो human beings होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी diversities होती हैं. We all are different from each other. We see our interests are different, our appearance is different, our attitude is different. We all are different from each other, है ना? So but there are some similarities also. कुछ मामलों में हम एक दूसरे से मिलते भी हैं. कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी, कुछ हैबिट्स, कुछ थॉट्स हमारे एक दूसरे से मिलते हैं. तो डाइवर्सिटी भी होती है हमारे बीच में, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ों में हमारे आपस में सिमिलैरिटी भी होती है. तो जब भी हम किसी से फ्रेंडशिप हमारी होती है तो उस फ्रेंडशिप का रीज़न क्या होता है? व्हाट इज़ द वाई, हाउ डू वी मेक फ्रेंड्स, ऑन व्हाट बेसिस वी मेक फ्रेंड्स? क्या हम कभी भी फ्रेंड बनाने के पहले ये देखते हैं कि वो किस कल्चर को बिलोंग करता है, किस लैंग्वेज को बोलता है, या किस कास्ट का है, या किस उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? अगर हम इन चीज़ों को देख करके फ्रेंडशिप करते हैं तो दैट इज़ नॉट रियल फ्रेंडशिप, है ना? इफ़ वी वांट टू नो a person's caste or a person's religion or a person's economic status or anything like that before making him or her friend, then that is not true friendship. True friendship का मतलब यही होता है जब हम without thinking on all these basis कि किसी का धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है,
वो कौन सा लैंग्वेज बोलता है, वो किस रीजन को बिलोंग करता है. व्हेन वी डू नॉट पे attention on these factors, we just make friends because our views are similar, we think in the similar way, we like the company of each other, and that is why we are friends. Nothing other than that is the requirement of friendship. फ्रेंड होने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि दो लोग एक ही कास्ट को या एक ही रिलीजन को या एक ही कल्चर को बिलोंग करें, है ना. फ्रेंड होने के लिए सिर्फ ये जरूरी होता है कि हम लोगों को एक दूसरे की कंपनी पसंद है. वी लाइक द कंपनी ऑफ ईच अदर, है ना. हमें उससे बातें करना अच्छा लगता है क्योंकि हमारे व्यूज कुछ हद तक मिलते जुलते भी हैं. अगर व्यूज नहीं भी मिलते हैं, स्टिल हम लोग एक दूसरे के साथ जो भी डिस्कशंस होते हैं, बातें होती हैं, वो हमें उसको एंजॉय करते हैं. So only that is important, and in this context we have discussed the friendship of two very different children. They were समीर 1 and समीर 2, है ना. हमने समीर 1 और समीर 2 की फ्रेंडशिप जो है वो हमने पढ़ी थी इसी चैप्टर में. और वो क्या था, कैसा था, वी विल अगेन फिर से हम लोग उस चैप्टर को, उस स्टोरी को याद करेंगे. ठीक है. समीर 1 एंड समीर 2. So there was a boy who used to sell newspaper at the Janpat crossing. ठीक है. And there was another boy who used to pass through that Janpat crossing every day on his cycle. Okay. So two children are there. One is selling the newspaper at the Janpat crossing, and the another is passing through that Janpat crossing every day. Okay. And now the story moves ahead, in which we see ki what happens that the boy who sells the newspaper, he shouts loudly regarding the news of the day, है ना. He wants कि जो साइकिल से जा रहा है बच्चा, he should purchase the newspaper. So he comes near him every day and shouts the news in Hindi and English also, whatever English he can speak. किसी भी तरह से मिक्स करके हिंदी और इंग्लिश को वो स्टोरी न्यूज सुनाया करता था. तो एवरी डे दिस वाज द रूटीन. एवरी डे वो जनपद क्रॉस करता था, वहां पर वो जो न्यूज़पेपर सेल करता है बच्चा, वो आता था और फिर बस यहीं तक होता था. वन डे व्हाट हैपेंड, द बॉय हु यूज्ड टू pass the Janpat crossing with his cycle, he stopped by the pavement. Okay, उसने pavement के पास रुक गया वो, and then he asked for Hindi paper. Okay, he asked for Hindi paper from that boy. So the boy from whom the another boy asked for Hindi paper, that boy became very shocked कि this boy is asking for Hindi paper. Because he was the boy who was selling the newspaper, he was of the opinion that the boy who is riding the bicycle, he does not know English, Hindi. ठीक है. उसको ये लगता था कि जो बच्चा साइकिल से जाता है उसे हिंदी नहीं आती होगी, वो यही सोचता था. तो दैट इज वाई क्या करता था वो, उसके पास जब आता था तो किसी भी तरह से थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिलाकर वो उसको न्यूज बताता था, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग कि द बॉय इज नॉट नोइंग हिंदी. तो सो व्हेन द बॉय आस्क्ड फॉर हिंदी न्यूज़पेपर, द नेक्स्ट बॉय हु वाज सेलिंग द न्यूज़पेपर, ही बिकेम वेरी सरप्राइज्ड कि हिंदी न्यूज़पेपर. तो वो बच्चा जिसने मांगा हिंदी न्यूज़पेपर, उसने कहा यस ऑफ कोर्स, and then he purchased the paper. So, and asked कि why, what did you think, why are you asking like this, इस तरह से तुम क्यों पूछ रहे हो. तो जो न्यूज़पेपर सेल करने वाला बच्चा था उसने कहा कि you look so
अंग्रेज, तुम तो अंग्रेज की तरह लगते हो, हम लोगों से बहुत डिफरेंट लगते हो, कहने का ये मतलब है ना। तो मुझे लगता था कि तुम हिंदी नहीं समझते हो क्या, तुम मतलब यू कैन रीड हिंदी। ही इज स्टिल वेरी क्यूरियस कि ये बच्चा हिंदी जानता है। तो उसने कहा, जो साइकिल से जाने वाला बच्चा था, उसने कहा कि यस ऑफ कोर्स आई कैन रीड हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन राइट हिंदी, बिकॉज हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन माई स्कूल, है ना। जैसे तुम लोगों का हिंदी एक सब्जेक्ट होता है, वैसे ही वो भी हिंदी पढ़ता था अपने स्कूल में। नाउ द टर्म इज सब्जेक्ट, है ना। हिंदी क्या है, हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द स्कूल। तो अब जो न्यूज़पेपर सेलर है उसको क्या हुआ, अब वो बड़ी परेशान हो गया भाई कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट। सो ही आस्क्ड द बॉय कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट। सो द अनदर बॉय who was riding the cycle, he wanted to explain what is subject. Okay, so but the moment he started to explain about subject, what happened कि ट्रैफिक की जो लाइट थी वो ग्रीन हो गई, है ना। एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड, उसको आगे जाना पड़ा बिकॉज पीछे से ट्रैफिक आ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे दे अगेन मेट। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से वो मिलते हैं, और जब नेक्स्ट डे वो मिलते हैं तो फिर से वो जो न्यूज़पेपर सेल करने वाला बच्चा था, देन अगेन ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर, है ना। और उसके बाद न्यूज़पेपर के लिए पूछने के बाद फिर वो पूछता है, अब फिर से बताइए मुझे सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट। ओके, अब जब उसने सब्जेक्ट वो बोल रहा था ना, तो जो दूसरा बच्चा जो साइकिल से जाता था उसको बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत अजीब डिफरेंट टाइप का साउंड आ रहा था, बिकॉज द बॉय हु वाज स्पीकिंग completely in Hindi, now he is using a new term subject, तो ये थोड़ा अलग तरह का लग रहा था। एंड नाउ ही वॉज वेरी पजल्ड कि उसको कैसे वो समझाए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो उसको क्या वो समझाता है कि इट इज जस्ट समथिंग टू स्टडी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बस उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, एंड देन फिर से क्या हुआ कि लाइट जो थी वो रेड हो जाती है, एंड देन अगेन ही started to move ahead, and जब वो आगे जाने लगता है तभी वो उससे पूछता है, जो साइकिल पे बच्चा है वो न्यूज़पेपर सेल करने वाले बच्चे से पूछता है कि हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो, है ना। ये उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो कि द बॉय हु इज सेलिंग न्यूज़पेपर at such a small age, has he ever been to school? So the reply was never. He has never been to school. वो कभी भी स्कूल जो है वो नहीं गया था। और तब वो कहता है कि मैं तो तभी से काम कर रहा हूँ, जबकि वो अपने साइकिल की जो सीट थी उस पर उसके जितने बराबर था वो तभी से काम कर रहा है। एंड he felt very proud when he told the boy that he is working since his childhood, जबकि उसकी हाइट साइकिल की सीट के जितनी थी वो तभी से काम कर रहा है। ये बोलते हुए उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था। और इस तरह से क्या हुआ, पहले उसकी मदर जो थी वो उसके साथ आती थी, बट नाउ एज ही इज नाउ ग्रोन अप तो ही कम्स अलोन। सो इतनी बातें जो थी वो इनके बीच में हो रही थी। एंड नाउ द बॉय हु वाज who used to be on cycle, he asked about his mother कि उसकी मदर कहाँ है ना। तो तब तक में क्या हुआ कि लाइट चेंज हो जाता है और जाने का टाइम हो जाता है, और फिर वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी जो दूसरा न्यूज़पेपर सेल करने वाला लड़का है वो कहता है कि सी इज इन मेरिट। और उसके बाद आगे जो बातें हुई वो जो उसने आगे भी कुछ कहा, बट जो भी आगे कहा वो दूसरा बच्चा सुन नहीं पाया। ओके, तो यहाँ तक हम लोग
कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 2 बच्चे हैं, एक न्यूज़पेपर सेल करने वाला है, एक साइकिल से वहीं क्रॉस करता है रोड को, और वो हर दिन मिलते हैं। कभी बात नहीं होती थी, एक दिन उनकी बात शुरू होती है और उसके बाद फिर वो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में चीज़ें जानते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट डे फिर से वो मिलते हैं। एवरी डे दे यूज्ड टू मीट एट दैट क्रॉसिंग, जनपद क्रॉसिंग। तो अभी तो जब लास्ट टाइम मिले थे तो उसने पूछा था उसके बारे में, जो बच्चा स्कूल जाता है, जो बच्चा साइकिल से जा रहा था, उसने पूछा था कि वो स्कूल जाता है या नहीं। देन ही टोल्ड हिम कि नहीं, वो तो बहुत छोटे से ही काम कर रहा है। फिर उसने पूछा तो उसकी मदर कहाँ है, तो पता चला उसकी मदर मेरठ में। तो यहाँ तक बात हो गई। अब नेक्स्ट डे फिर जब वो मिलते हैं तब जो बच्चा है वो न्यूज़पेपर सेल करने वाला, उसने अपना नाम बताया कि माय नेम इज समीर। ओके, यही है समीर। उसने अपना नाम बताया और फिर बहुत ही शाई होते हुए बहुत ही धीरे से उसने पूछा व्हाट्स योर्स, तुम्हारा नाम क्या है ना। तो इट वॉज रियली वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज दोनों ही जो बच्चे थे उन दोनों का क्या नाम था, दोनों का ही नाम समीर था। दैट इज वाई वी आर सेइंग इट द स्टोरी ऑफ समीर 1 एंड समीर 2। तो ये दोनों बच्चे तब पता चलता है उन्हें कि अरे मेरा भी नाम समीर है और जो साइकिल से बच्चा जाता है उसका भी नाम समीर है। तो वो बहुत जब उसने जाना, न्यूज़पेपर सेल करने वाले बच्चे ने जाना कि जिससे वो बातें कर रहा है, जो साइकिल राइड करता है, जो स्कूल जाता है, जो इतना अंग्रेज सा लगता है, इतना काफी उससे अलग सा, हर चीज में वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बट दे बोथ आर हैविंग द सेम नेम, दोनों का एक ही नाम है। तो ये जान के उसको बहुत खुशी हुई। ही वॉज हैप्पी बाई नोइंग दिस कि उसका भी वही नाम है जो मतलब उसके जो जिससे वो बातें कर रहा है, जो इतना काफी अलग है उससे, लेकिन नाम दोनों के सेम है ना। तो अब क्या हुआ कि उसके वो बहुत खुश हुआ और ये भी जो थे, दूसरा बच्चा जो था उसने भी बताया क्या कि समीर जो है वो किसका नाम है, समीर इज अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर। ठीक है, हनुमान के जो फादर हैं उनका नाम क्या होता है, हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। अगर हिंदू माइथोलॉजी में हमारे क्या माना जाता है, जो हनुमान है वो पवन के बेटे हैं, पवन पुत्र। पवन क्या होती है, हवा। तुमने हिंदी में पढ़ा होगा ना, पवन का ही ये सब वो सिनोनिम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना। तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द पवन के क्या क्या होते हैं, दिस समीर, हवा, है ना। तो समीर जो है वो हनुमान के फादर का नाम है। तो उसने कहा कि तुम्हें तो पता होगा। सो अब क्या हम कहते हैं कि तुम यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2। ठीक है, तो इस तरह से जो समीर 1 और समीर 2 जो था उनका नाम हो जाता है, दोनों एक दूसरे अपना अपना नाम रख लेते हैं। सो द बॉय हु इज राइडिंग द साइकिल, who goes to school, he is named समीर 1। ठीक है, वो उसका नाम हो गया समीर 1। and the boy who is selling the newspaper is named समीर 2। ओके, तो इस तरह से इनके ये नाम हो जाते हैं, समीर 1 एंड समीर 2। अब उनके बीच की जो फ्रेंडशिप है वो और बढ़ती है। अब क्या होता है कि दोनों आपस में हाथ भी मिलाते हैं, है ना, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और उसके बाद दोनों के बीच की हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंडशिप थी वो अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्यों इस तरह की चीज़ को हमारे स्टोरी में लाया गया है, ये बता रहा है कि हम एक दूसरे से अलग होते हैं। हमारा काफ़ी कुछ में डिफरेंस, जैसे यहाँ पर हम समीर 1 और समीर 2 में अभी और भी डिफरेंसेस हम जानेंगे। अभी तक में हमने देखा कि समीर 1 जो है वो क्या करता है,
ही गोज टू स्कूल, है ना, ही knows हिंदी as well as English, and समीर 2 जो है वो he has never been to school, he is working since his childhood and he does not know English। तो ये सारी चीजें डिफरेंस है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी दोनों के नाम एक है। तो ये जो फीलिंग आती है ये हमें क्या बनाती है, हमें एक बनाती है। इसके बाद फिर से वो लोग मिलते हैं और आगे भी बातचीत होती है। जब आगे बात होती है तो क्या पता चलता है कि नेक्स्ट डे जब वो मिलते हैं तो समीर 2 जो था ही वॉज थोड़ा वो ट्रबल्ड लग रहा था, है ना। तो क्या हो गया था, प्रॉब्लम क्या आई थी कि हर मदर वॉज इन मेरठ, है ना, और मेरठ में कुछ ट्रबल आ गया था। क्या ट्रबल आया था कि वहां पर राइट्स हो गया था। ओके, राइट में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। और ये क्या देख रहा है कि वो बता रहा है, जो समीर 2 है वो समीर 1 को बता रहा है कि मेरठ में कम्युनल राइट्स हो गए। राइट्स आर कम्युनल। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनल राइट्स? कम्युनल राइट्स मीन्स जब 2 कम्युनिटी के बीच में राइट्स मीन्स दंगे, ठीक है, किसी तरह का वायलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ सम, क्योंकि 2 लोग जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, या 2 लोग या 2 ग्रुप, उनके बीच में एक छोटी सी बात से लेकर के इस तरह के जो वायलेंस होते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कई सारे लोगों की कई बार जान चली जाती। तो उसी तरह का जो कम्युनल राइट्स था वो मेरठ में हो गया था, और इस कम्युनल राइट्स में बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी, ठीक है, और काफी कुछ वहां पर हो रहा था। अब ये जो समीर 2 है वो बहुत घबराया हुआ है, ठीक है, कि मम्मी उसकी वही है, ठीक है। अब जो समीर 1 है वो सोच रहा है कि ये इतना क्यों परेशान हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों की जान गई इस कम्युनल वायलेंस में, कम्युनल राइट में, वो ज्यादातर जो थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। और ये तो समीर है, समीर तो हिंदू होते हैं, है ना। नाम से हम क्या करते हैं, नाम से भी यूज टू ट्राई टू नो द, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, किसी का भी नाम सुनते हैं तो उससे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो किस रिलीजन का होगा। तो समीर एज द नेम, समीर इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ हनुमान। तो जो समीर 1 था वो यही मान रहा था, उसको यही अज्यूम कर लिया था कि ये जो समीर जिससे वो मिला है ही इज ऑल्सो अ हिंदू, जैसे वो हिंदू है वैसे ही वो भी हिंदू है। तो जब वो ये देखता है कि जब मेरठ में जो कम्युनल राइट्स हुए उससे समीर 2 जो है वो बहुत परेशान है, तो तब उसकी समझ में आता है कि क्या मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो बताता है, जो समीर 2 है वो बताता है कि आई एम अ मुस्लिम समीर, है ना, तुम हिंदू समीर हो बट मैं मुस्लिम समीर हूँ, बोथ आर समीर बट देयर रिलीजन इज डिफरेंट। एंड उसके मेरठ में उसकी मदर भी रहती हैं और अदर जो फैमिली मेंबर्स हैं दे आर ऑल्सो इन मेरठ। एंड नाउ ही इज रियली हिज आईज आर फुल ऑफ टीयर्स। और अब वो नहीं समझ पा रहा है कि मतलब क्या होगा आगे, कैसे होगा, बिकॉज जिस तरह की कम्युनल राइट्स हुए उसमें क्या हुआ होगा, मतलब हो सकता है उसके घर के भी जो लोग हैं उनके साथ भी कुछ उस तरह के इंसिडेंट्स हुए होंगे। तो वो बहुत ही पजल्ड था, ठीक है। और जब दूसरे दिन ये समीर 1 वहां पर जाता है अपने साइकिल से, तो व्हाट ही फाइंड कि समीर 2 वाज नॉट देयर, और उसके बाद उसने समीर 2 को कभी भी वहां पे नहीं देखा। और इस तरह से ये हमारी स्टोरी है, ठीक है, समीर 1 और समीर 2 की। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि समीर 1 और समीर 2 के बीच में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज ही ज्यादा है। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। लाइक पहले ही मैंने बताया कि एक जो है वो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, एक जो है वो काम करता है। अर्ली चाइल्ड, बहुत मतलब छोटे बच्चे, बचपन से ही वो काम कर रहा था, है ना, वो कभी स्कूल नहीं गया था। समीर 1 जो है ही इज नोइंग बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड समीर 2 is not knowing English. English is a completely strange language for him, but
ही इज नोइंग ओनली हिंदी लैंग्वेज। एंड नाउ वी नो कि उनके बीच में और भी डिफरेंसेस है। वो क्या डिफरेंस है? दैट बोथ ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। उनका रिलीजन डिफरेंट है। समीर एक इज बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन एंड समीर दो इज बिलोंगिंग टू मुस्लिम रिलीजन। और रिलीजन के साथ साथ उनका कल्चर भी डिफरेंट है ना। तो इस तरह से उनका रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड भी हमें पता चलता है कि दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो ये सारे के बाद भी इतने सारे डिफरेंसेस हमने देखे, स्टिल हम क्या देखते हैं कि दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई थी, है ना। और यही नहीं, मतलब ये तो डिफरेंसेस हम देख ही रहे हैं कि उनका रिलीजन एंड कल्चर डिफरेंट है। उनकी जिसको हम कह सकते हैं फैमिली का बैकग्राउंड, लाइक एक जो है वो स्कूल नहीं गया है, एक स्कूल जाता है, एक हिंदी जानता है, एक हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है। इसके अलावे भी दोनों के बीच में डिफरेंस है। और वो क्या है? लाइक समीर एक जो है, अगर हम देखें तो वो एक इकोनॉमिकली जो साउंड फैमिली है उसको बिलोंग करता है। लेकिन समीर दो जो है वो उसकी जो फैमिली है वो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है। दैट इज वाई ही इज वर्किंग सिंस हिज चाइल्डहुड। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती तो वो काम नहीं करता, फिर तो वो स्कूल जाता और औरों की तरह। बट ही इज नॉट एबल टू go to the school. Why? Because of lack of opportunity. He does not have the opportunity to go to school. Schools are there. स्कूल में एजुकेशन भी फ्री हो जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, कोई फीस नहीं लगती है। खास करके जो बीपीएल हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं, उनके लिए फ्री है एजुकेशन। बट द फैमिली नीड्स मनी, है ना। फैमिली को पैसे चाहिए और उसको जो बच्चे हैं दे आर द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे आर अर्निंग मनी। तो इफ दे go to a school, then how will they earn the money? They will not be able to earn the money. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि there is sharp difference between the condition of life of both समीर एक एंड समीर दो। समीर एक का जो फैमिली है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, दैट इज वाई दे आर सेंडिंग देयर चाइल्ड टू द स्कूल, है ना। बट समीर दो जो है वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी है एंड दैट इज वाई ही इज सेलिंग द न्यूज़पेपर, ही इज अर्निंग मनी फॉर हिज फैमिली सिंस हिज चाइल्डहुड। तो ये जो चीजें हैं, आखिर इसमें अगर हम देखें तो इस तरह का जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि एक बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है पढ़ाई? क्योंकि उसको ही हैज टू अर्न मनी। तो इसमें कौन किसको हम कहेंगे कि किसकी गलती है? ये बच्चे की गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीर दो की गलती नहीं है। अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है तो ये समीर दो की गलती नहीं है। तो क्या उसके फैमिली की गलती है? नहीं, दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ हिज फैमिली ऑल्सो, बिकॉज उसकी फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो एक बच्चे को स्कूल भेजना अफोर्ड कर सके। उसको बच्चे से वो अर्न करता है, पैसा अर्न करता है ना। अगर स्कूल जाएगा तो फिर वो पैसा नहीं अर्न कर पाएगा, फिर उनके फैमिली के खर्चे नहीं चल पाएंगे, तो फिर क्या होगा? बहुत मुश्किल आएगी। तो उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, उसकी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए। जैसे हम लोग देखेंगे, ये सब अभी तुम लोग आगे जानोगे कि हमारे कंट्री में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया हुआ है, मतलब चाइल्ड लेबर नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बिलो 14 ईयर्स का बच्चा काम करता है तो उसको वो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं ऐसा होता है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अभी हम लोग यही देखेंगे कि समीर दो जो है वो ऐसी बात नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है, बट उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो पढ़ सके। उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो पढ़ सके, है ना। तो दैट इज वाई उसको वो स्कूल नहीं जा रहा और वो कमाई कर रहा है। एंड ये जो डिफरेंस हमको दिख रहा है दोनों के इकोनॉमिक स्टेटस में, जो डिफरेंस नजर आ रहा है कि एक अच्छे इकोनॉमिक स्टेटस का, एक पुअर इकोनॉमिक स्टेटस का, ये जो डिफरेंस है दिस इज नॉट डाइवर्सिटी। ठीक है,
इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये जैसे कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होना, रिलीजन का डिफरेंट होना, डिफरेंट लैंग्वेज का बोलना, ये चीजें जो हैं ये डाइवर्सिटी हैं, ठीक है। बट ये हम जिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि कोई रिच है कोई पुअर है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी तब आती है जब एक इंसान के को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं जो कि दूसरे लोग को तो मिल रही हैं बट उसे नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो ये इसको हम डाइवर्सिटी के अंदर नहीं रखते। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है दैट डज नॉट कम अंडर डाइवर्सिटी, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमिक गैप हमको दिख रहा है रिच और पुअर के बीच का, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अनदर द फर्दर in the next class.